Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Ikram Mushtaq. The topic of my lecture is hydrated disease. The word hydrated means a cavity which is filled with the fluid, watery fluid. Hydrated disease is a zoonosis that is it is transmitted to human from animals. Disease in man is caused by infective larvae of intestinal tapeworm, Echinococcus, or adult worms. They are found in dogs and other carnivores. In this picture shown below, there is a segment of the liver where you can see in the upper right corner there is a calcified cyst, hydrated cyst. Now we will study its geographical distribution. Hydrated disease, it has been recognized as a public health problem. It is found in all sheep raising countries, for example, Australia, New Zealand, Tasmania, Middle East countries, Turkey, Greece, Cyprus, Latin America, and it is its focus. They are also known to exist in India. This is the structure of the tapeworm Echinococcus. It has three segments: head, immature segment, and mature. Egg. It is produced in a mature segment. In its head structure is very important. It has four suckers on its head, and also spollex and rostellum. The tapeworms, their size is from 3 to 6 millimeter. Rarely they cross above the 7 millimeter. Scolex, which is present on the head, it bears four suckers through which it is attached to its host, and there are two rows of hooks, one small and one large in rostellum, which is also present in the head. Now we will study its species. It has four species which are valid. Number one is the Echinococcus granulosus, which has a worldwide distribution. Its definitive host is dog. In man, it causes the unilocular type of Echinococcus. Another species is Echinococcus multilocularis, which is restricted to northern hemisphere, and it causes alveolar type of disease in man. The next is Oligarthus, which is present in Central and South America. The last one is Vogeli, which is also present in Central and South America, and it causes a polycystic hydatidosis. दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ द Echinococcus, जो कि डॉग शीप साइकिल है. इस साइकिल में डेफिनेटिव होस्ट डॉग है और इंटरमीडिएट होस्ट शीप, गोट, स्वाइन और ह्यूमन है. डेफिनेटिव होस्ट यानी कि डॉग, वो खुद इन्फेक्शन कहाँ से हार्बर करता है? वो बेसिकली खाता है इंटरमीडिएट ऑर्गन के इंटरनल ऑर्गन्स, जो कि इकोसिस्टम का रूल है. जब एक दफ़ा डॉग इन्फेक्ट हो जाए, उसके बाद इसकी फीसेस में एग्स रिलीज़ होते हैं जो कि इन्वायरमेंट को इन्फेक्ट करते हैं. कैसे? वेजिटेशंस और वाटर को पोल्यूट करके. यही वेजिटेशन और जो वाटर है, इससे इंटरमीडिएट होस्ट इन कांटेक्ट आता है, और ह्यूमन जो है वो फॉर एग्जांपल इन पुअर वेजिटेशन और पोल्यूटेड वाटर के अलावा इन्फेक्टेड डॉग से हैंडलिंग के ज़रिए भी इस इन्फेक्शन को हार्बर कर सकता है. यानी कि डॉग से फिर इन्फेक्शन जो है इंटरमीडिएट होस्ट में आ जाते हैं. इंटरमीडिएट होस्ट में ये टेपम इंटेस्टिन में अपने सक्कर्स के ज़रिए अटैच होता है, पेनिट्रेट करता है, और साथ ही अपने जो एग्ज़िम को रिलीज़ करता है, सिस्ट को रिलीज़ करता है. सिस्ट जो है फिर जो विसराज है उसमें जाकर कैविटेशन करती है. कैविटेशन के साइज़ पे, कैविटेशन जो है वो तो काफ़ी टाइम तक, फ्यू मंथ्स तक ये अनसिम्टोमेटिक रहता है इंटरमीडिएट होस्ट. जब कैविटी का साइज़ बढ़ता है, उसके प्रेशर सिम्टम्स की वजह से जब मतलब कि पेशेंट प्रेजेंट करता है, जो फॉर एग्जांपल लिवर में प्रेशर सिम्टम आएगा जॉन्डिस, तो जब हम जॉन्डिस को रूल आउट करेंगे, उसके बाद रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि देयर इज़ कैविटी इज़ बीइंग फॉर्म्ड विद इन द लिवर, and then we will go towards the stool examination. This is the microscopic picture of hydrated cyst, जिसके अंदर पेरिसिस्ट है. सबसे पहले पेरिसिस्ट में ब्लड वेसल्स और फाइब्रोब्लास्ट हैं जो कि मेंशन किए हुए हैं. उसके बाद एक्टोसिस्ट विच इज़ ए सेलुलर, एंडोसिस्ट जो कि जर्मिनल लेयर है जिसके अंदर ब्रूड कैप्सूल बेसिकली
रिलीज होते हैं जब भी मतलब सिस्ट जो है वो रप्चर हो। और आगे स्कॉलिक स्टॉक, डॉटर सिस्ट और हाइडेटेड सैंड। एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, डेफिनेटिव होस्ट इसका डॉग या फिर केनाइंस है। इंटरमीडिएट होस्ट शीप, कैटल, कैमल एंड ह्यूमन। इन्फेक्टिव स्टेज इसके एग्स हैं। हाइडेटेड सिस्ट की साइट्स कौन सी हैं? लिवर, लंग्स, एब्डोमिनल कैविटी, स्प्लीन, किडनी, हार्ट, सीएनएस। और डेड एंड होस्ट इसका मैन है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द होस्ट फैक्टर्स। होस्ट फैक्टर्स में आ जाता है ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर में क्या? फॉर एग्जांपल अनकंट्रोल्ड स्लॉटर ऑफ द फूड एनिमल्स, और साथ ही इनडिस्क्रिमिनेट डिस्पोजल ऑफ ओफल, जो कि फूड के तौर पे यूज़ होता है। ओफल क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स। और साथ में कार्केसेस यानी कि उनकी डेड रिमेन्स। ईटिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल इन चाइल्डहुड ड्यूरिंग इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड डॉग। और साथ ही हाइडेटेड डिजीज इज एन ऑक्यूपेशनल डिजीज इन शेपर्ड्स। यानी कि होस्ट फैक्टर्स जो है इसमें ह्यूमन बिहेवियर इन्वॉल्व होता है। ह्यूमन बिहेवियर किस किस तरीके से इन्वॉल्व होता है वो मैंने आपको एग्जाम्पल्स नीचे बताई। मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो ये डिज़ीज़ हाइडेटेड डिजीज़ है, ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट नहीं होती। ठीक है, ये एनिमल से जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था, ये जूनोसिस है, एनिमल से ह्यूमन में होती है। और इसकी इंक्यूबेशन पीरियड मंथ्स टू ईयर्स है। इंजेशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? इंजेशन, ओरोफिकल, यानी कि जो इकाइनोकोकस के एग्स हैं वो फूड के ज़रिए कोई इंजेस्ट कर ले। और वो कैसे इंजेस्ट करेगा, किस किस तरीक़ों से इंजेस्ट करेगा? अगर वेजिटेबल्स जो हैं उनको आपने अच्छे तरीके से वॉश नहीं किया हुआ, या फिर जो वाटर है वो कंटेमिनेटेड है फीसिस के साथ, इन्फेक्टेड डॉग के फीसिस के साथ। हैंडलिंग एंड प्लेइंग विद इन्फेक्टेड डॉग्स। अदर एनिमल, उसके अलावा एनिमल टू एनिमल भी ट्रांसमिशन है। डॉग गोट हो गया, डॉग कैटल और डॉग कैमल। अच्छा, नीचे जो है ये पिक्चर आप देख लें, ये स्टूल एग्जामिनेशन है जिसमें एग्स दिखाए गए हैं इकाइनोकोकस के। नाउ वी विल कम टू द क्लिनिकल फीचर्स कि अगर किसी को हाइडेटेड डिजीज़ हो गए तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे जिससे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। मैन में सिम्टम्स जो होते हैं मैनिफेस्ट होते हैं एक्सपोजर के काफ़ी साल बाद। This cyst grows slowly from 5 to 20 years after they are diagnosed. Size of the cyst vary करता है पिन हेड से लेके एक small football तक. More than 70% of the cyst is located in right lobe of the liver. Cysts, they are filled with watery fluid and they contain large number of tapeworms heads. अगर cyst rupture हो जाए तो brood capsules जो हैं वो metastasize करेंगे to other sites and they will develop a hydated. ब्रूड कैप्सूल की पिक्चर मैंने आपको पहले दिखा चुकी हूँ, जो मैंने क्या नाम है उसका सिस्ट की जो डिटेल पिक्चर दिखाई है उसमें मैंने आपको दिखाए थे कि छोटे छोटे सर्कुलर कैप्सूल, छोटे छोटे सर्कल से हैं, उसमें ब्रूड कैप्सूल्स हैं। अच्छा, उसके अलावा है कि लार्ज सिस्ट, जितनी सिस्ट बड़ी होगी उसके प्रेशर सिम्टम्स ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल लिवर के अंदर सिस्ट है तो इट विल कॉज जॉन्डिस। इसके अलावा किसी भी वाइटल ऑर्गन में अगर ये सिस्ट डेवलप हो जाएगी और इसका साइज़ बड़ा होगा तो इट कैन कॉज डेथ। अच्छा जी, अब आप डायग्नोस और मैनेजमेंट क्या करेंगे? डायग्नोसिस जो इसका क्लिनिकल बेस्ड होता है, मतलब हिस्ट्री होगी ऐसे एरिया, एंडेमिक एरिया में रेजिडेंसी की जहाँ पे इन्फेक्टेड डॉग्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा क्लोज एसोसिएशन होगी डॉग्स के साथ एंड प्रेजेंस ऑफ स्लोली ग्रोइंग सिस्टिक ट्यूमर। फिर क्लिनिकल हिस्ट्री के बाद हम रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड और कैट स्कैन है। साथ में सीरोलॉजिकल टेस्टिंग है जिसमें हमारे पास इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेस्ट है, एलाइजा टेस्ट है जो कि हाई सेंसिटिविटी है। क्यों? किस चीज़ के लिए? फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटी काइनोकोकस एंटीबॉडीज IgG। साथ में यानी कि रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होगी, सीरोलॉजिकल होगी, इंट्राडर्मल टेस्ट। इंट्राडर्मल टेस्ट में किसोनी टेस्ट है। किसोनी टेस्ट है, ये आपको पिक्चर मैंने दिखाई है, इसकी इंटरप्रिटेशन आपने क्या करनी है वो अगली स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ। नाउ व्हाट इज अ किसोनी टेस्ट? It involves the intradermal injection of 0.25 ml of sterilized fluid from hydrated cyst, ठीक है, या फिर human cyst
जिसे कह रहे हैं, और ऑन द फोर आर्म एंड इक्वल उतने ही वॉल्यूम का आपने सेलाइन तैयार करना है विच इज़ इंजेक्टेड ऑन द अदर फोर आर्म, जो कि स्टैंडर्ड के तौर पे आपने यूज़ करना है। अगर तो पॉजिटिव रिएक्शन होगा, अगर तो किसोनी टेस्ट पॉजिटिव होगा तो एक व्हील रिस्पॉन्स आएगा इंजेक्शन साइट पे विद इन द 20 मिनट्स। Test is positive in about 90% of the cases of hereditary disease affecting the liver, but positive in less than 50% of the patient with hereditary disease elsewhere in the body. फॉल्स पॉजिटिव, आपको पता है कि ये फिर जो टेक्निक्स होती हैं इनमें फॉल्स पॉजिटिव का हर वक्त जो है वो पॉसिबिलिटी रहती है। डायग्नोसिस तो हमने पढ़ लिया, अब हम इसकी मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। मैनेजमेंट में या तो मेडिकल मैनेजमेंट है या सर्जिकल है। मेडिकल में मीबेंडाजोल आप देंगे जो कि प्योरली एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम जीआईटी और जीआईटी। तो इसके अलावा हम एल्बेंडाजोल दे सकते हैं 10 to 15 mg per kg per day इन एडल्ट। सर्जिकल रिमूवल में जाहिर बात है सिस्ट का साइज बढ़ेगा तो उसको हम सर्जिकली ही एक्साइज करेंगे। इट इन्वॉल्व्स हाई रिस्क बिकॉज द एक्सीडेंटल पेनिट्रेशन ऑफ वन cyst can lead to the anaphylactic shock. Now this is important from our subject point of view, prevention. मतलब आप किस तरीके से काउंसिल करेंगे कि प्रिवेंशन आपने कैसे करनी है बाय प्रिवेंटिंग द डॉग्स फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू ओफा एट स्लॉटर हाउस। इट इन्वॉल्व्स कंट्रोल ऑफ स्लॉटर हाउसेस। ठीक है, आपने डॉग्स को प्रिवेंट करना है ताकि वो स्लॉटर हाउस के करीब ना जाएं, और स्लॉटर हाउस की आपने जो क्लीनलीनेस है उसके ऊपर ख़ास ख्याल देना है। इसके अलावा प्रॉपर मीट इंस्पेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ, यानी कि मीट की इंस्पेक्शन और मीट की डिस्पोजल भी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर कोई इन्फेक्टेड विसरा है तो वो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ होने चाहिए। इसके अलावा डॉग्स को कंट्रोल करना है आपने, यानी कि कैसे, बाय एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स, रिडक्शन ऑफ द डॉग पॉपुलेशन, डॉग की रजिस्ट्रेशन सिस्टम जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में होती है। इसके अलावा आप मतलब ह्यूमन बीइंग को ट्रीट करने के साथ साथ आप डॉग्स को भी ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल विद प्रेजिक्वेंटल सिंगल ओरल डोज ऑफ 5 mg per kg ऑफ बॉडी वेट। इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन पर्टिकुलरली बुचर्स की, डॉग ओनर्स की, एनिमल ब्रीडर्स की एंड शेफर्ड्स की। प्रिवेंशन में ही एक और पॉइंट है इम्प्रूव द वाटर सैनिटेशन, कि अगर वाटर कंटेमिनेट हो भी गया है तो उसको हम उसकी सैनिटेशन जो है वाटर की वो प्रॉपर होनी चाहिए। Thank you, fourth year. If you have any question, you can ask.